हेलो बेटा, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर, आ रही है आवाज। गुड आफ्टरनून। सो हाउ वाज योर पेपर? सर बढ़िया हुआ। द स्टैंडर्ड वाज अप टू द मार्क? स्टैंडर्ड सही था ना पेपर का? यस सर, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मीडियम था। हाँ, इसीलिए पूछा हूँ। ओके, सो आई थिंक अभी आपने ही ज्वाइन किया है और बच्चे ज्वाइन कर लें, देन आई स्टार्ट द सेशन। यस, आई जस्ट वेट फॉर 1 minute and then start the ओके सर। solution. Okay. Okay, so now I'm going to start. I think the student will join gradually. So all of you are getting my voice? सभी को आवाज आ रही? हेलो, सभी को आवाज आ रही बेटा? यस सर। Yes, sir. Okay. Okay, so this lecture we will discuss the solution regarding pre and sem exam that you have just appeared for within 10 to 12 p.m. Here. So we start with the first question, that is in the layer hierarchy as the data packet moves from the upper to the lower layer, headers are. सभी को पता है, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि जो हमारी जब डेटा हमारा पैकेट मूव करता है अपर लेयर से लोअर लेयर में, तो हेडर्स हमारे क्या होते हैं, उसमें ऐड होते हैं। हेडर क्या करते हैं? एड्रेस इंफॉर्मेशन को जनरली कैरी करते हैं। क्लियर? सो so they are added. So answer first will be the correct option. Now the second part of the question, communication between a computer and a keyboard involves this type of transmission. So you all know this is a simplest type of communication, clear, between a computer and a keyboard. Clear? This is a very fundamental question regarding this. Then we have question number 3, that is the TCP/IP model consists of how many layers? So it is what? A five layers that happens in the TCP/IP models. But in case of OSI model, you all know there is just 7 layer. Clear? So answer A will be correct. Which of the following layers is an addition to SI model when compared with TCP/IP model? Clear? कहने का मतलब OSI में कौन सी एक्स्ट्रा लेयर्स, 2 एक्स्ट्रा लेयर होती हैं जो कि TCP/IP में नहीं होती हैं। तो you all know session and presentation layer. So D option will be correct. Clear? Because it is a 7 layer model. In case of question number 5, a list of protocols that used by the system, one protocol per layer is called. पर लेयर एक प्रोटोकॉल जो हमारा एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल स्टैक। क्लियर? स्टैक आप लोग जानते हैं। क्लियर? कंप्यूटर में आप लोगों को स्टैक का मतलब पता है, व्हाट इज स्टैक। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड। दिस इज व्हाट? टोपोलॉजी। क्लियर? आप लोग को पता है कि टोपोलॉजी के अंदर हमारे सारे आ जाते हैं, स्टार, बस, मैश, सारी टोपोलॉजीज कवर होती हैं। तो उसमें हम लोग फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट पढ़ते हैं नेटवर्क्स का, कि कैसे हम फिजिकली या लॉजिकली कोई टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क बनाते हैं, चाहे वो स्टार टोपोलॉजी हो, चाहे बस टोपोलॉजी हो, चाहे रिंग टोपोलॉजी हो। क्लियर? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क एग्जैक्टली। क्लियर? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, in OSI model when data is sent from device A to device B, clear, the fifth layer to receive data at B is, clear, जो fifth layer होगी तो receive करेगी data at B is what? That is session layer. Clear? If you go through the layer model of OSI, then you can understand this. Clear? That is the seven layer structure. Now the next one is when the data are transmitted from device A to device B, the header from A's
layer 4 is read by B's layer. कौन सी layer से read होगा? That will be transport layer. Clear? Then we have question number 9, that is, which network connects the machines and peoples within a site in a small area? ये सभी को पता है. This is very much easier question. एक within a small area हमारा LAN connect होता है, ये सभी को पता है. So answer will be the LAN. Clear? Local area network. उसके बाद 10th question, which of the following statement is associated with OSI model? इसमें बताना है आपको कौन सा हमारा एसोसिएट करेगा OSI मॉडल से. बाकी 3 ऐसे हैं जो एसोसिएट नहीं करेंगे. जैसे पहला, इट स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस. ये ऑब्वियसली गलत है, ये इसका फुल फॉर्म ही नहीं है. क्लियर? सेकंड पॉइंट है, द लेयर ऑफ दिस मॉडल आर नॉट सुटेबल टू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. दिस पॉइंट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज सुटेबल फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. क्लियर? थर्ड पॉइंट है, दिस मॉडल फॉलोज वर्टिकल अप्रोच. ये सभी को पता है, इट इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल बेस्ड हायरार्की. सो वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है ये. The last one is it is a non-layered architecture. This is also incorrect because layered protocol है ये, non-layered तो है नहीं. तो C option will be correct. Yeah. Am I audible properly to all of you? सभी को properly मेरी आवाज आ रही है? बेटा सभी को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Okay. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ISDN? ISDN के बारे में क्या चीज इसमें सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देयर आर 4 ऑप्शंस. सो इफ यू गो विद द ऑप्शंस, तो फर्स्ट वन इज द इट सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन. क्लियर? दिस इज दिस इज द करेक्ट वन फॉर दिस ISDN. ये सपोर्ट करता है. देन सेकंड वन इज द इट सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस बोथ स्विच्ड एंड नॉन स्विच्ड कनेक्शन. ये भी सही है. आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है. ठीक है? थर्ड वन इज द इट स्टैंड्स फॉर द इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. सो ये भी आपका क्या है, सही है. ठीक है? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है डिजिटल नेटवर्क में. ये मतलब इसकी एक तरह से फुल फॉर्म भी है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द इट ए लेयर्ड प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर दैट इज नॉट यूज्ड फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द access to an ISDN. So this is the not true statement for the ISDN. Clear? So then if you come to the question number 12 पे अगर हम आते हैं, so ARPANET use the concept of packet switching network consist of subnet and subnet के अलावा और क्या इसमें consist होता है computers में? That is the host computers. Clear? Host computers will also belong to this subnet and host computer with the ARPANET that uses the concept of packet switching. Then we have question number 13. The physical layer concerns with. Physical layer आपका क्या concern करता है, कौन सा point इसमें cover होगा? This is a bit by bit delivery. ये हमने आपको एक diagram भी बताया था जब पढ़ाते हुए कि किसमें पैकेट बाय पैकेट ट्रांसमिशन होता है, किसमें बिट बाय बिट होता है, किसमें फ्रेम बाय फ्रेम होता है. पूरा मैंने एक आपको आर्किटेक्चर दिखाया था कि किस लेयर में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है. तो फिजिकल अभी मैंने जल्दी आपको जब रिवीजन पार्ट में फिजिकल लेयर में बताया भी था. इट इज ए बिट बाय बिट डिलीवरी. क्लियर? So answer C will be correct. Now if we come to question number 15, so which is not a guided transmission media? कौन सा guided transmission media नहीं है? Twisted pair, you all know it is a guided type transmission. Baseband coaxial cable is also guided transmission. Fiber optics is also a type of fiber cable which is used for the communication. Then we have mixed network. So it is not a type of guided transmission. Mixed network में आपका कुछ भी हो सकता है, वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है. क्लियर? Then we have unguided signals can travel from the source to destination. Clear? In which way? That is three-way communication. Handshaking protocol भी हमने आपको बताया था. So unguided signals basically travel from source to destination in a three-way communication, three-way type communication. Clear? Then we have question number 16. Clear? A topology that involves token is called. किस टोपोलॉजी में टोकन्स का यूज होता है? तो आप लोग को पता है
we just use in the ring topology, we uses the tokens that are passing from one node to another node in the ring. Clear? So it just uses the ring topology. Clear? Then we have question number 17. Which of the following task is not done by the data link layer? कौन सा task data link layer done नहीं करता है? तो इसमें देखिए फ्रेमिंग भी होती है, एरर कंट्रोल भी होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है। ये भी मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया भी था रिवीजन में। फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, these all are the part of the data link layer. Channel coding is not the part of the data link layer, so D will be the correct option for this. Clear? That is not the part of the data link layer. Then we have question number 18. Automatic repeat request error management mechanism is provided by which layer? Clear? So logical link control sublayer basically provide the ARQ, that is automatic repeat request error management mechanism. Clear? This is not done by media access control or network interface or application access control sublayer. Then we have question number 19. The radio waves from a microwaves and infrared waves are the types of. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है, ये वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। रेडियो वेव्स हो गई, वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। माइक्रोवेव्स दैट आर आल्सो वायरलेस टाइप ऑफ, इंफ्रारेड दैट एग्जैक्टली यूजेस इनटू द रिमोट आल्सो। So this is a wireless type communication. So wireless transmission will be there. Clear? Then we come to question number 20. The data link layer divides the stream of bits received from the network layer into data units called. Clear? So what will be the answer? स्ट्रीम ऑफ बिट्स को रिसीव जो करता है नेटवर्क लेयर से, उनको डेटा यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, डिवाइड करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रेम्स। क्लियर? दैट आर कॉल्ड फ्रेम्स। क्लियर? फ्रेम्स हमें मिलते हैं डिवाइड करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, द डैश प्रोटोकॉल हैज फ्लो कंट्रोल बट नॉट एरर कंट्रोल। कौन से प्रोटोकॉल में फ्लो कंट्रोल फॉलो होता है बट एरर कंट्रोल फॉलो नहीं होता है? एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, तो आंसर क्या है इसका? स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट मैंने डिस्कस भी किया था। क्लियर? दिस एग्जैक्टली फॉलो द फ्लो कंट्रोल बट नॉट द एरर कंट्रोल। ये फ्लो कंट्रोल तो इसमें आप पॉसिबल है, एरर कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। ठीक, जिसका आंसर मीडियम पे कौन डिपेंड करेगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इज डिपेंड ऑन द मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्लियर? 23 क्वेश्चंस की बात करें, the technique of temporarily delaying outgoing acknowledgement so that they can be hooked onto the next outgoing data from frame is called piggybacking। अभी एक लेक्चर पहले ही मैंने आपको बताया था पिग्गीबैकिंग का कॉन्सेप्ट। क्लियर? so this is based on the piggybacking. Basically it is a technique of temporarily delaying outgoing acknowledgement। कुछ समय के लिए outgoing acknowledgement को डिले करता है, जिससे it can be hooked onto the next outgoing data frame। Clear? Then we have question number 24. In go back NARQ protocol, if frames 4, 5 and 6 are received successfully, मतलब चौथा, पांचवा और छठा फ्रेम अगर सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंडर को जो भेजेगा वो कौन सा भेजेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, 4, 5, 6 अगर रिसीव हो गया तो 7th पे एक्नॉलेजमेंट जाएगा। ठीक है ना? तो 7th पे एक्नॉलेजमेंट जाएगा, तो आंसर डी विल बी करेक्ट। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है सभी को प्रॉपरली? हेलो? यस सर। ओके, बहुत ही कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट ज्वाइंड। व्हाई? एक मिनट, एक मैसेज डाल देता हूँ मैं। ओके
Now we come to next question. Clear? Yes sir. Then we have the question number, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए 4 5 6 फ्रेम अगर हमारा ट्रांसमिट हो गया है तो एक्नॉलेजमेंट 7th पे आएगा, जिसका मतलब है कि 4 5 6 हमारा सक्सेसफुली रिसीव हो गया। क्लियर? इसके बाद 25 क्वेश्चन है, द वनरेबल टाइम फॉर CSMA इज द, तो ये सभी को पता है सेम होता है। हमने आप में आपको पिछली बार जो है इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया था क्विज में भी, जब हमने थर्ड क्विज आपसे पूछा था। क्लियर? तो वनरेबल टाइम हमने आपको बताया भी था उसमें। ठीक है, तो CSMA के केस में जो है ये प्रोपगेशन टाइम से बराबर ही होता है। ठीक है, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। 26 की बात करें, अब CSMA आपको हमने पढ़ाया था जब रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल पढ़ाए थे, तो उसमें हमने आपसे CSMA और डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपसे बताया था कैसे हमारा कैरियर सेंस करता है पाथ को। ठीक है, सेंडर सेंस करता है पाथ को बिफोर ट्रांसमिशन। क्लियर? सो टू अवॉइड द कोलिजन। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, a one to many communication between one source and a specific group of hosts is classified as one to many, मतलब एक से कई सारे लोगों को जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ मल्टीकास्ट। क्लियर? लेकिन मल्टी क्लास भी हो सकता था, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता था, बट ब्रॉडकास्ट हमने आपको बताया ये किसी ग्रुप को नहीं मिलता, ये सभी को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो मल्टीकास्ट होता है वो एक किसी ग्रुप को दिया जाता है, ग्रुप में 15-20 लोग हो सकते हैं। क्वेश्चन में ये क्या है, सोर्स टू ए स्पेसिफिक ग्रुप। स्पेसिफिक ग्रुप आ गया तो मतलब ग्रुप के अंदर आपके कुछ कुछ हमारे नोट्स हो सकते हैं जिनमें कम्युनिकेशन हो सकता है, तो ये मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? नॉट अ ब्रॉडकास्ट। सो सम बिट लिटिल बिट कंफ्यूजन इन दिस, मैंने कई बार आपसे बताया भी है मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, एनीकास्ट क्या होता है एंड यूनिकास्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन डैश कोलिजन्स आर अवॉइडेड थ्रू द यूज ऑफ 3 स्ट्रेटजीज। क्लियर? क्लियर? सो Yes sir. some students have joined now. So collisions are avoided through the use of 3 strategies. किस तरह के हम प्रोटोकॉल मैकेनिज्म यूज करते हैं कोलिजन अवॉइड करने के लिए? 3 स्ट्रेटेजीज होती है, इंटरफ्रेम स्पेस, कंटेंशन विंडो एंड एक्नॉलेजमेंट। तो आंसर इसका क्या है? कैरियर सेंस एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। क्लियर? जिसमें हम लोग ऑब्वियस सी बात है कोलिजन अवॉइडेंस में ही कोलिजन को अवॉइड किया जाता है। तो आपका एक तरह से क्वेश्चन में ये आंसर भी इसका दिया हुआ है, अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा। इन कोलिजन आर अवॉइडेड, अवॉइडेड का मतलब ये है कि सीए ही होगा, डिटेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, बिकॉज अवॉइड कर रहे हैं कोलिजन को, तो दैट विल बी CSMA CA प्रोटोकॉल। नाउ देन वी हैव IEEE 802.11b। you all know this is the Wi-Fi standard, IEEE standard uses कौन सा स्पेक्ट्रम टेक्निक? हेलो, Yes sir. somebody is asking anything? एक मिनट, just wait. Okay, somebody beyond your class is also try to join, I think so. Is there any student with the name Ram in your class? Hello? Yes sir. Shri Ram Dubey. Okay, but he had just mentioned Ram only, that's why I was just confused. Okay. Okay, so I will allow them again if he will join. Okay, so now we come to the question number 828, that is IEEE 802.11b uses कौन सा हमारा IEEE 802.11b कौन सी स्पेक्ट्रम टेक्निक को यूज करता है? तो दैट इज DSSS, दैट इज डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम टेक्निक। क्लियर?
So this is little bit from the communication. Clear? Okay. Then we use a which uses pseudo random codes. Pseudo random codes आपको पता है this relate to the PN sequences. Clear? And part of the CDMA, that is code division multiple access. So CDMA का ही part है pseudo random code. तो कौन सा है जो यूज करता है? तो this is asynchronous CDMA. ठीक है, not a synchronous CDMA. This is asynchronous CDMA. Clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, Now sir. we come to okay. इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13. क्लियर? 30 की बात करें. In 1000 base T Ethernet, the maximum segment length is. ये भी हमने आपसे पढ़ाते वक्त ही डिस्कस किया था. कई सारे IEEE स्टैंडर्ड थे, तो वो इथरनेट बेस स्टैंडर्ड थे जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था. 100 बेस टी, 1000 बेस टी, 1000 बेस LX, ये सारे स्टैंडर्ड में हमने आपको बताया था टेबल के थ्रू कि कैसे हमारी क्या लेंथ वगैरह रहती है, कितना डेटा रेट होता है. तो 1000 बेस टी जो इथरनेट है उसमें जो मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ है वो हमारी कितनी है? 100 मीटर्स. दिस इज द लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन. जो वायर का हमारा लेंथ है इथरनेट केबल का वो 100 मीटर होता है इसमें. ठीक है ना? दिस इज ए गीगाबिट इथरनेट. ये कौन सा इथरनेट है? ये गीगाबिट इथरनेट है. ठीक है ना? इसी पे बेस एक क्वेश्चन और है इसी में, इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं. तो अभी वहां पे आपको ये क्वेश्चन फिर दिखेगा. उसमें कुछ और स्टेटमेंट पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड. ठीक है, बट इसकी जो मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ है वो 100 मीटर होती है. फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, दैट इज वेरी मच इजी. मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ प्योर एलोहा इज. यह सभी को पता है 18.4% होता है. स्लॉटेड एलोहा का इससे डबल हो जाता है. स्लॉटेड एलोहा में एफिशिएंसी ज्यादा होती है. ठीक है, ये हमने आपको कैलकुलेट करके भी बताया था. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 32. ओके, 32 की अगर हम बात करें, इट इज ए मल्टीपल एक्सेस मेथड इन विच द अवेलेबल बैंडविड्थ of a link is shared in time, frequency और through code between different stations. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जब हमने अभी आपको बताया था, 3 मेथड हमने आपको बताए थे मल्टीपल एक्सेस में: रैंडम एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस और चैनलाइजेशन. ठीक है, तो ये आपका चैनलाइजेशन के अंदर कवर होगा, जिसमें हमने आपको CDMA, TDMA और FDMA पढ़ाया था. ठीक है, तो टाइम, फ्रीक्वेंसी और कोड, ये तीनों ही CDMA, TDMA, FDMA का पार्ट है. ये आपका चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में कवर होगा. क्लियर? दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस और रैंडम एक्सेस. ठीक है, रैंडम एक्सेस में आपका CSMA एंड सो ऑल दीज थिंग्स विल बी, जिसमें हमने आपको टोकन बकेट एल्गोरिथम और ये सारी चीजें आपको बताई थी. क्लियर? इसके बाद आता है तो 33 क्वेश्चन. इन द dash method, after the station find the line idle, it sends or refrains from sending based on the outcome of a random number generator. If the line is busy, it tries again. So इसका आंसर क्या है? आंसर will be A, P persistent. P persistent, 1 persistent, ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस करी थी. नॉन persistent मेथड, ये सब CSMA के पार्ट है. क्लियर? तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है P persistent का कि अगर स्टेशन आइडियल अगर फाइंड करता है, it sends or refrains from sending based on the outcome of a random number generated. ठीक है? Then we have question number. सारे questions हमने आपको पढ़ाते वक्त डिस्कस किए. Most of the questions have been discussed during the teaching learning process. Clear? So if those students who are regular in touch with me during the lectures, so they find the questions. Clear? In Ethernet addressing, if all the bits are ones, the address is, ये भी मैंने आपको बताया, अगर सारे बिट्स 1 हो जाएं तो कौन सा एड्रेस कहलाएगा? ये दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ब्रॉडकास्ट एड्रेस. 000 होता है तो डिफॉल्ट होता है, वो जनरली डिफॉल्ट एड्रेस होता है. एक बार मैं वो क्वेश्चन पूछ भी चुका हूँ आपसे क्विज में. इस बार मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको कि सारे बिट्स अगर 1 हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, सभी को ट्रांसमिट हो रहा है. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एन ईथरनेट यूनिकास्ट डेस्टिनेशन. इसमें भी हमने आपको यूनिकास्ट, एनीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, इफ यू रिमेम्बर.
याद आ रहा है क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए थे कैसे हम जी एड्रेस को सर, पहचान। जी सर। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्टली, आपको अगर वो तरीका पता है जो मैंने आपको बताया था, तो यू कैन डायरेक्टली रिकॉग्नाइज यूनिकास्ट डेस्टिनेशन, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एनी कास्ट एड्रेस। तो पूरा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे उसमें। ये इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, दैट इज लास्ट में 00 आ रहा है, यू कैन सी। तो दिस इज द यूनिकास्ट डेस्टिनेशन। क्लियर? इफ यू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, जैसे हमने आपको मेथड बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, you will get the answer. Clear? Then we have question number 36, standard ethernet जो कि 10 mbps bit rate है, uses which encoding method? So Manchester encoding is used in standard ethernet, that is having the data rate of 10 mbps. Clear? NRZ is non-return to 0. Clear? Then AMI Manchester, differential Manchester. So in this scheme Manchester encoding is used. Clear? For standard ethernet. Clear? Then we have Yes sir. question number 37. A network layer at the source is responsible for creating a packet from the data coming from another. Clear? तो आंसर इसका क्या है? प्रोटोकॉल। क्लियर? जो भी नेटवर्क लेयर है उसमें जो सोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है एक पैकेट क्रिएट करने का फ्रॉम डेटा कमिंग फ्रॉम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल से जो डेटा आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 38, which broadcast packets but creates loop in the system. क्लियर? कौन है जो ब्रॉडकास्ट करता है पैकेट को बट लूप्स क्रिएट करता है सिस्टम में? तो आंसर क्या है इसका? फ्लडिंग। फ्लडिंग सभी को पता है, फ्लडिंग मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। फ्लडिंग में क्या है, पैकेट हमारे एक साथ ब्रॉडकास्ट होते हैं। फ्लडिंग का मतलब ये बहुत सारे संख्या में पैकेट का ट्रांसमिट होना, इट्स अ डेटा फ्लो। क्लियर? सो फ्लडिंग एग्जैक्टली ब्रॉडकास्ट पैकेट्स बट एग्जैक्टली क्रिएट्स लूप्स इन द सिस्टम। क्लियर? सो फ्लडिंग में हमारे पैकेट लॉस के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि we destination at the same time cannot deal with the flow if the flow control is not following, so most of the time data may get corrupted. Clear? All of you are also requested kindly mark your attendance according to your class and roll number. सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा according to your class and roll number in the chat box. Okay, now we have question number 39. Open shortest path first, that is OSPF protocol is an intra-domain routing. ये राउटर्स जब हमने आपको राउटिंग पढ़ाया था उसका ये पार्ट है। OSPF protocol is an intra-domain routing protocol based on किस मेथड, राउटिंग मेथड पे बेस्ड है? तो दिस इज ऑन लिंक स्टेट। क्लियर? दिस इज बेस्ड ऑन लिंक स्टेट। क्लियर? This is a specific type of protocol OSPF that uses the link state routing method to route the packet. Clear? Then we have question number 40. In which delivery the deliverer of the IP packet and the destinations are on different network? ठीक है, ये भी पता है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्ट वाले में सेम नेटवर्क पे होता है, इनडायरेक्ट में डिफरेंट नेटवर्क पे होता है। तो चूंकि सीधे इसने बोला है, इसका एक क्वेश्चन हम आपको क्विज में भी दिए थे जिसमें हमने डायरेक्ट डिलीवरी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। अगर वो सेम नेटवर्क में बिलोंग कर रहे हैं सेंडर रिसीवर तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। इनडायरेक्ट में दे आर ऑन द डिफरेंट नेटवर्क, डेस्टिनेशंस आर ऑन द डिफरेंट नेटवर्क, so this will be indirect delivery. Clear? Then we have question number 41. In dash there is no communication between the congested node or the nodes and the source. Clear? The source guesses that there is a congestion somewhere in the network from other symptoms. Clear? What will be the answer? ये सारे हमने आपसे डिस्कस किए थे, बैक प्रेशर, चोक पैकेट, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग, एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। याद आ रहा है? सभी चीज मैंने डिस्कस करी थी आपसे विद द डायग्राम। कि अगर मान लीजिए किसी एक पैकेट पे हमारा प्रॉब्लम आती थी बैक प्रेशर में, क्या करता था वो, एक नोड, एक वो पर्टिकुलर नोड एक पैकेट सेंड करता था बैक। क्लियर? सेंडर के पास, तो वो नोड बाय नोड भी ट्रांसमिट हो सकता था, डायरेक्ट भी जा सकता था। गेटिंग माय पॉइंट? चोक पैकेट में मैंने आपको बताया था। तो दिस इज द Yes इम्प्लिसिट sir. सिग्नलिंग। ठीक है, ये आंसर इसका इम्प्लिसिट सिग्नलिंग है। ये चारों आपका एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका इस डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट याद है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का, यू कैन डायरेक्टली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर?
ये सारे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाते वक्त सब डिस्कस किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है? Then we have question number 42. In the dash algorithm of TCP, the size of the congestion windows increases additively until congestion is detected. कहने का मतलब है जो विंडो साइज है वो एडिटिवली इंक्रीज करता रहेगा जब तक कंजेशन डिटेक्ट नहीं होता है। ये कौन सा मेथड है? कंजेशन अवॉइडेंस मेथड है। ठीक है? इन द कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम ऑफ टीसीपी द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो इंक्रीजेस एडिटिवली until congestion is detected. Clear? Then we have question number 43. In IPv4, the service type of the service in the header field, the first 3 bytes are called. IPv4 का जो हमने आपको पैकेट फॉर्मेट बताया था, तो सिंपल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है? उसमें जो फर्स्ट 3 बाइट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है? The service type of the service in the header field, the first 3 bytes are called. ये डायरेक्ट आंसर इसका प्रेसिडेंस बिट्स, इनको हम प्रेसिडेंस बिट्स कहते हैं। तो अगर आपको हेडर फॉर्मेट आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने बताया भी था आपको IPv4 का पैकेट फॉर्मेटिंग, हेडर फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगर आपको फॉर्मेटिंग याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है dash is a characteristics that a flow needs. Lack of it means losing a packet of acknowledgement which entails retransmission. Clear? ये सभी को पता है कि किस चीज की कमी से हम कह सकते हैं सिस्टम हमारा रिट्रांसमिशन को फॉलो कर रहा है, या एक तरह से सिस्टम हमारा गड़बड़ हो सकता है। तो क्या किस चीज की कमी होगी? रिलायबिलिटी की कमी होगी। अगर सिस्टम में रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब दैट विल इसका मतलब है कि इसमें लैक ऑफ इट्स मीनिंग लूजिंग ए पैकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट व्हिच entails रिट्रांसमिशन। तो अगर आपका रिलायबिलिटी नहीं है सिस्टम में तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, रिट्रांसमिशन करना पड़ेगा। ठीक है? तो एक्नॉलेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सॉरी reliability is very much important. So then we have question number 45. In an IPv6 header, the traffic class field is similar to which field in the IPv4 header? Yeah? ये कंपैरिजन जब हमने आपको बताया था IPv4 का IPv6 से, कंपैरिजन टेबल हमने आपको शेयर भी करी थी, बताया भी था। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा IPv6 में जो ट्रैफिक क्लास होता है वो IPv4 में किसके सिमिलर होता है। ठीक है? सो IPv4 में ये TOS फील्ड के सर्विस सिमिलर होता है, which is type of service. Clear? So TOS field जो होती है उसके सिमिलर होता है। Then we have question number 46. If you know, which are the features present in IPv4 but not in IPv6? कौन सा फीचर है जो IPv4 में होता है लेकिन IPv6 में नहीं होता है? क्लियर? सो ये देख सकते हैं आप, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, हेडर चेकसम भी होता है, ऑप्शन भी है, बट एनी का जो एड्रेस है वो IPv4 में तो होता है लेकिन IPv6 में नहीं होता है, कि उसमें एनी कास्ट नहीं होगा। ठीक है? फोर्टी 47 की बात करें, इन ATM द डैश लेयर डिफाइन द ट्रांसमिशन मीडियम बिट ट्रांसमिशन, एनकोडिंग एंड इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? कौन सी लेयर है? ATM लेयर हमने बताया था, ATM का स्ट्रक्चर आप एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में, एक इसका ATM का हमने रेफरेंस मॉडल भी आपसे डिस्कस किया था। तो कौन सा लेयर है जो ट्रांसमिशन में ये सबको डिफाइन करता है? तो आंसर क्या है? फिजिकल लेयर। ठीक है? AAL इज द ATM एडाप्टेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ATM लेयर, नेटवर्क लेयर। तो इसमें जो आंसर है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर बेसिकली डिफाइन करता है ट्रांसमिशन मीडियम, बिट ट्रांसमिशन, एनकोडिंग एंड इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल ट्रांसमिशन। Then we have question number 48. Which are the following that UDP guaranteed? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। TCP और UDP में एक मेजर डिफरेंस है, आप सभी को पता है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड फॉलो करता है, UDP कनेक्शनलेस मेथड की गारंटीड फॉलो करता है। इसमें सिंपल सा आंसर है, फ्लो कंट्रोल नहीं है। ठीक है? फ्लो कंट्रोल इसमें हो ही नहीं सकता UDP में, क्योंकि पैकेट्स हमारे अनरिलायबली ट्रांसमिट होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन।
बी इज द कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी, ये भी नहीं हो सकता है, टीसीपी का फॉलो करता है। अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस सर्विस, यही ये फॉलो करता है, ठीक है। इसमें रिट्रांसमिशन भी नहीं होता पैकेट का जनरली। अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस सर्विस जो है वो हमारी यूडीपी में गारंटीड है, ये होती ही होती है, ठीक है। गारंटी का मतलब जो डेफिनेटली होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। Then we have question number 49. Which one of the following allows a user at one site to establish a connection to another site and then pass keystrokes from local host to remote host? तो टेलनेट में हमने आपको बताया था, टेलनेट बहुत सिंपल सा आंसर है। रिमोट होस्ट आपको आ गया तो डायरेक्टली आपको गेस कर लेना चाहिए, दिस इज टेलनेट। टेलनेट में क्या होता है, रिमोट एक्सेसिंग होती है, कम्युनिकेशन टू द रिमोट होस्ट, क्लियर। सो आंसर विल बी द टेलनेट। टीएफटीपी नहीं हो सकता, ये ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, दैट इज यूडीपी बेस्ड। एफटीपी आपका टीसीपी को फॉलो करता है। एसटीटीपी इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, दैट इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन, क्लियर। सो ये हमारे ऑप्शन है, टेलनेट ही है जो हमारा रिमोट एक्सेसिंग करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिलीवर्स ऑब्लिक स्टोर्स मेल टू द रिसीवर सर्वर? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा प्रोटोकॉल है जो मेल ट्रांसमिशन से लिंक करता है, एग्जैक्टली कह सकते हैं, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल आपको पता है। इसके बाद मेल बॉक्स होता है सेंडर और रिसीवर पे, जहां मेल्स हमारे कलेक्ट होते हैं, क्लियर। You carry the mailboxes on the sender and receiver side. Then we have question number 51. Which DNS client maps an address to a name or a name to an address especially when required by a host? इसका आंसर resolver है। This is basically relate with the URL here. Domain name system से relate कर रहा है ये। So answer will be the resolver. इसके बाद आता है email is. क्वेश्चन नंबर 52 अगर आप देखें, ईमेल इज, ईमेल आपका चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशन, बैंडविड्थ सेंसिटिव एप्लीकेशन, इलास्टिक एप्लीकेशन और लॉसी एप्लीकेशन। तो आंसर विल बी सी, दैट इज इलास्टिक एप्लीकेशन, क्लियर। Then we have question number 53. When the sender and the receiver of an email are on the same system, we need only two. अगर सेंडर और रिसीवर सेम सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं ईमेल ट्रांसमिशन में, तो हमें क्या चाहिए, कौन से दो चीजें चाहिए? दो आईपी चाहिए, दो सर्वर्स चाहिए, दो डोमेन चाहिए, या दो यूजर एजेंट चाहिए? दो, वी रिक्वायर टू यूजर एजेंट्स, क्लियर। दो यूजर एजेंट हो तो अगर वो सेम सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली मेल को कम्युनिकेट कर सकते हैं। एफटीपी इज बिल्ड ऑन द विच आर्किटेक्चर? एफटीपी आप सभी को पता है, क्लाइंट टू सर्वर मॉडल होता है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ हमारी फाइलें एक्सेस होती हैं, ठीक है। Then we have question number 55. Which application layer level protocol plays a crucial role in carrying out the data definition and manipulation in addition to X500 features? So this is LDAP. This is LDAP. Clear? Okay. Can anyone please tell me what is LDAP? Hello? Can anyone please tell me? That is lightweight directory access protocol. Clear? That is lightweight directory access protocol. This is an open and closed platform protocol used for directory services authentication. Clear? ठीक है ना? Yes, sir. Now then we have related to the security mechanism, cryptography question. Shift cipher sometimes refers to as the Caesar cipher, state cipher, main cipher, good cipher. So answer will be Caesar cipher. Clear? ये क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको पढ़ाया था, 2-3 लेक्चर में हमने पूरा कवर किया है। ओके, सो टाइमिंग इज गेटिंग ओवर, टाइम ओवर होने वाला है, सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन अगेन बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट। सो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड वी हैव which phases of POP3 allows an user agent to retrieve the message as well as to mark the message for deletion purpose. Yeah. So this is the transaction phase. Transaction phase in post